નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા બધાનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુસ્ટાર વિથ પરબતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું કક્ષા 5 વિષય છે હિન્દી, પ્રથમ સત્ર, એનો ઇકાઈ 3 કાવ્ય છે નન્ના મુન્ના રાહી હું। આપણે આગળ ભણીએ એની પહેલાં જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, ચેનલને લાઈક કરી દેજો। તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો અને વિડીયો તમારા બીજા મિત્ર સુધી પણ શેર કરજો જેથી કરીને એ પણ આ વિડીયો જોઈ શકે। હવે આપણે આગળ વધીએ। ઇકાઈ 3 નન્ના મુન્ના રાહી હું, જેના કવિ છે શકીલ બદાયુની। જોઈએ આપણે એનો परिचय आ काव्य न थोड़ो। इस गीत में बालक सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मैं मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करे, ऐसी बच्चे की भावना है। तो काव्य जी खूब सरस काव्य है। काव्यनो राग पण खूब सारो है। नन्ना मुन्ना राही हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। અને જેના કવિ છે આપણે શકીલ બદાયુની। હવે આ કાવ્ય આપણે ગાયું। હવે આનો ભાવાર્થ સમજીએ। નન્ના મુન્ના રાહી હું, નાનકડો હું રાહદાર છું, પંથી છું કે પ્રવાસી છું, બરાબર। ને દેશનો સિપાહી એટલે કે સૈનિક છું। બોલો મેરે સંગ સંગ, મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ। रस्ते पे चलूंगा न डर डर के, रस्ताમાં માર્ગ ઉપર ડરી ડરીને નહીં ચાલું, હિંમતપૂર્વક નિડર થઈને ચાલીશ। ચાહે મુझे जीना पड़े मर मर के, मतलब મારે ભલે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે પણ હું નિડરતાથી રસ્તા પર ચાલીશ, ભલે ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ આવે। મંજિલ से पहले न लूंगा कहीं दम, જ્યાં સુધી મને મારું લક્ષ્ય મંજિલ ના મળી જાય, ધ્યેય મારો પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી હું શ્વાસ નહીં લઉં।
ત્યાં સુધી ચંપીશ નહીં, કે આરામ નહીં કરું. આગળ ને આગળ મારા કદમ એટલે પગલાં વધારતો રહે, આગળ ને આગળ મારા ડગ ભરતો રહીશ. અને આગળ કે છે કવિ, ધૂપ મેં પસીના મેં બહાંગવા, કે કોઈ પણ તડકો હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, એમાં હું મહેનત કરીશ. પસીનો હોય એટલે મહેનત કરીશ. અને જ્યાં હું મહેનત કરીશ ત્યાં હરાભરા લીલા ખેતરો છે એ લહેરાય પાક, અને હરિયાળી ખીલી ઉઠશે મારા દેશની અંદર. આ ધરતી ઉપર પાપી જન્મ નહીં લે, ધરતી પે પાપી ન પાએંગે જન્મ. આ ધરતી પર પાપી ક્યારેય જન્મ નહીં લે. આગળ ને આગળ મારા હું કદમ પગને કે મારા ચરણોને કે ડગલા ભરતો રહીશ. બડા હો કે દેશ કા સહારા બનूंगा, મોટો થઈ અને આ દેશ છે અને સહારો આપીશ, એનો સહારો હું બનીશ. દુનિયા કે આંખો તારા, આખી દુનિયામાં હું પ્રેમ ભાવના ફેલાવીશ અને બધાનો હું પ્રેમ મેળવીશ. રખુંગા ઊંચા તિરંગા હરદમ, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણા દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ જે છે તિરંગો, એને હું કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ઊંચે રાખીશ, એનું સન્માન નીચે નહીં ગીરવા દઉં, નીચે પડવા નહીં દઉં. આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, આગળ ને આગળ ડગલા ભરતો રહેશે. આ રીતનું એવું આપણે કવિ કહેવા માંગે છે. શાંતિ કી નગરી હે મેરા એ વતન, મારો આ દેશ છે એ એક શાંતિની નગરી જેવો છે. સબકો શીખાઉંગા મેં પ્યાર કા ચલન, બધાને હું પ્રેમ કરતા શીખવાડીશ, પ્રેમનો વ્યવહાર કરતા શીખવાડીશ. દુનિયામાં ક્યાંય પણ, દુનિયા મેં ગીરે નહીં દૂંગા મેં બમ, દુનિયામાં ક્યાંય પણ હું બમને પડવા નહીં દઉં. અને મારા જે કદમો છે કે મારા જે ચરણ છે, પગલાં છે, હું આગળ ને આગળ વધારતો રહીશ. આ રીતનું આપણે દેશ માટે એક સૈનિક તરીકે કાર્ય કરવાનું શુભ ભાવના કવિ વ્યક્ત કરે છે. આગળ શબ્દાર્થ જોઈએ આપણે આ કાવ્યના. નન્હા તો છોટા, ધૂપ એટલે તડકો આપણે ગુજરાતીમાં, રાહી તો મુસાફિર કે યાત્રી, સિપાહીનું થશે સૈનિક, વતનનું દેશ અથવા જન્મભૂમિ થઈ શકે, મંજિલ એટલે કે લક્ષ્ય ધ્યેય, ચલન એટલે વ્યવહાર આચરણ, દમ એટલે શ્વાસ सांस, बम એટલે વિસ્ફોટક પદાર્થો કા બના હુआ ગોલા, કદમ એટલે પેર અને આપણે ગુજરાતીમાં થશે પગ. હવે મુહાવરો એક આપેલો છે, આંખો કા તારા એટલે ખૂબ જ પ્યારું હોવું કે બહુ પ્યારા હિન્દીમાં. આગળ આજ કાવ્યમાં આપણે અભ્યાસ જોઈએ, તો અભ્યાસમાં શું છે જોઈએ આગળ. ઉત્તર દીजिए, આના તમારે સવાલોનો જવાબ આપવાના છે. ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो, એવા કાર્ય બતાવો કે જે તે તમે દેશ સેવા માટે કરવા માંગો છો કે કરો છો. તો આપણે બધા, मैं अपने देश में, मैं अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा. बड़ा होके अपने देश में योग्य हर नागरिक के साथ योग्य व्यवहार करूंगा. और मैं कहीं भी देशवासियों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा. इस तरह आप लिख सकते हो. अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. यदि अगर मैं सिपाही होता तो मैं देश की सरहदों का पूरा दम लगा के सुरक्षा करता. मैं अपनों साथियों को भी हौसला देता. इस देश के नागरिक के लिए मैं जो भी कर सकता, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी कर सकता हूँ, मैं पूरा अपना सर्वस्व लगा के उसकी रक्षा करने का प्रयास करता. अगर जे सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा. सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो सोचता होगा, काश मैं अभी घायल ना हुआ होता तो मैं अपने देश की अधिक सेवा कर सकता, और मेरे घायल होने से मेरे साथियों का हौसला न टूटे न पाए, और उसकी हिम्मत बंधी रहे. इस तरह वो सोचता होगा. प्रश्न चौथा है हमारा प्रश्न, हम अपने राष्ट्र को तिरंगा क्यों कहते हैं, राष्ट्रध्वज को, इसके रंगों के अर्थ बताओ.
हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा इसीलिए कहते हैं कि उसमें 3 रंग है, हरा, सफेद और नीला, 3 रंग है। तो जो केसरिया है रंग हमारे राष्ट्रध्वज का, वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है वो हमारे देश की हरियाली, कृषि प्रधान जो है हमारा देश की हरियाली दर्शाता है। इसीलिए तीन रंग होने के कारण हम अपने देश के राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। આગળ જોઈએ આપણે તો अभ्यासમાં बीजू है, दूसरा है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहेगा तो क्या होगा। वो તમારે કાવ્ય જે છે એમાં જોઈ અને કહેવાનું છે, કાવ્યમાં જોઈ અને તમારે કહેવાનું છે, બરાબર। તો વિચારો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ આવે છે તમને? આપણે હમણાં જ કાવ્ય ભણી ગયા છીએ કે जो बच्चा धूप में पसीना बहेगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। आगे है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तीसरा है, मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उस मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं। आगे तीसरा हमारा है, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ, આપણે વિચારીએ ને કહેવાનું છે। पहला है, तुमने यह नारा किस अवसर पर बोला है? तो हमने यह नारा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्र दिन, 26 जनवरी यानी प्रजासत्ताक दिन पर, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर यह नारा बोला है। याद है ना आपको? इन नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं? नारा सिवाय बीजे આપણે क्या क्या नारा बोलिए છીએ? तो इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आजाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं हम। अब चौथो है, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। तो તમારે बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? बड़ा मोटा थे અને તમે શું બનવા માંગો છો? तो बड़ा होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो? शिक्षक केम बनવું છે? तो એના ઉત્તરમાં આવશે कि मैं शिक्षक बन के अपने देश के नागरिक बच्चों को शिक्षा दूंगा ताकि वह अच्छे नागरिक बन सके, अपने देश के लिए प्रेम भाव बना रहे और देश के अच्छे नागरिक की जरूरत है, जिसके कारण हमारा देश दुनिया में आगे बढ़ सके। इस तरह आप उसका जवाब लिख सकते हैं। आगे स्वाध्याय है, उसके कुछ प्रश्न हम देखते हैं। स्वाध्याय उसका पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न तमारे उत्तर लखवाना। હવે આપણે વિલંબ શબ્દ જોયા। આગળ આપણે નીચે જોઈએ ત્રીજું, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। सामने जो आयत दी गई है उसमें से आपको दो शब्द जो है पर्याय ढूंढ के लिखना है। पहला है राही, उसका होगा मुसाफिर और पंथी।
दूसरा शब्द हमारा है सिपाही। सिपाही का वही होगा फौजी और सैनिक। धरती है तो धरती का पर्यायी शब्द होंगे पृथ्वी और धरा। चौथा हमारा शब्द है रास्ता। रास्ता का पर्यायी शब्द होगा पंथ और राह। पांचवा हमारा है मंजिल। तो मंजिल का पर्यायी शब्द होंगे लक्ष्य और ध्येय। इस प्रकार हम समानार्थी जो उसके पर्याय शब्द है वो लिखेंगे। आगे हमें चौथा देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है भाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में, आपकी जो मातृभाषा है उसमें अनुवाद करना है, यानी इस वाक्य का गुजराती में अनुवाद हमें करना है। पहला हमारा धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो धरती ऊपर पापियों जन्म ले से नहीं। दूसरा हमारा वाक्य बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो बाળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે, એવું થશે ગુજરાતી। ત્રીજું છે मैं देश का सिपाही हूँ। હું દેશનો સૈનિક છું, એનો ગુજરાતી થશે। चौथो है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। એનું ગુજરાતી થશે દુનિયામાં ક્યાંય પણ બોમ્બ નહીં પડે। અને પાંચમું આપણું છે हमारे देश का नाम भारत है। तो આપણા દેશનું નામ ભારત છે, એ રીતનું એનું ગુજરાતી થશે। હવે આગળ પાંચમું ક્વેશ્ચન આપણે જે निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिया है उसके अनुरूप काव्य में से हमें पंक्ति ढूंढकर लिखनी है। तो पहले हमारे जो वाक्य है वो है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। उसका रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, ये काव्य पंक्ति हमारे यहाँ आएगी। दूसरा हमारा वाक्य है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। यानी काव्य मध्य अपने पंक्ति जोशु तो आवश्य मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। तीसरा है नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। इसका जवाब में हमारी काव्य पंक्ति आएगी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथा हमारा है हमारा देश शांति प्रिय है। उसकी काव्य में से पंक्ति हम उनके लिखेंगे। उस तो यह पंक्ति होगी शांति की नगरी है मेरा यह वतन। इस प्रकार हम लिखेंगे। छठा है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ में जो शब्द दिए गए हैं उसमें से उचित शब्द चुन के यहाँ वाक्य में लिखना है। पहला में हमारा है लड़के खेल रहे हैं। दूसरा हमारा खाली जगह है, उसमें क्रिकेट खेलता हूं, तो इसमें मैं आएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तीसरा वाक्य है आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें नुक्ता वाला है आएगा, तो नुक्ता वाला है वो आएगा। चौथा हमारा है खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो उसमें इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, ले इन शब्द आएगा। पांचवा है हमारा हम खाली जगह तो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, इस प्रकार आएगा। और छठा है सातवां प्रश्न हमारा स्वाध्याय का देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है कविता के आधार पर देश का सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। एक कविता है उसके अनुरूप हमें देश के सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। आगे देखते हैं 8वां। तो इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो देश की सेवा कैसे करते। तो यहाँ पे हमें पहला है किसान, शिक्षक, दूसरा खिलाड़ी, कलाकार है चौथा,
और आप इन सब देश की सेवा किस प्रकार करते हैं वो आपको लिखना है। तो किसान है तो अन्न का उत्पादन करके, फसल उगा के देशवासियों का पेट भरता है, देश की प्रगति में हिस्सा लेता है। इस प्रकार किसान भी देश की ही सेवा करता है, देश के लोगों के लिए, इसकी आबादी के लिए अन्न उगाता है और उसकी सारी खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। शिक्षक है तो शिक्षक भी देश की सेवा किस प्रकार करता है। तो शिक्षक अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके उसका भविष्य उज्जवल बनाता है और देश के अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, जिससे देश की प्रगति हो सके। उसी प्रकार खिलाड़ी है तो खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेलते हैं, हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं और हमारे देश के नौजवानों को स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर की काबिलियत के लिए जो वर्कआउट करना है कैसे, उसके लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार खिलाड़ी भी एक देश की सेवा करता है। कलाकार है जो हमारे देश की संस्कृति, कला, उसको प्रदर्शित करता है, हमारे देश की संस्कृति को बनाए रखता है, उसको देश विदेश तक पहुंचाते हैं अपने कला के माध्यम से। इस प्रकार कलाकार हमारे देश की सेवा करते हैं। आप कैसे करेंगे? तो हम अपने देश में साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं इसका रक्षण करेंगे, इस पर रक्षण करेंगे, अपने देशवासियों के साथ प्यार भरा व्यवहार करेंगे। ये सारी बातें करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक जो होंगी उसमें लिखना है। बाल मित्रों, આપણો પાઠ અહીં પૂર્ણ થાય છે। આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। આપણે એ ચેનલ હજુ સુધી જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને આગળ તમારા બીજા મિત્રો સુધી શેર કરજો। આપણે ફરી મળીશું બીજા જ એક શૈક્ષણિક વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બધા આવજો।